Hello everyone, welcome to Legal Update. Today's topic for discussion is ex parte injunctions could be invalid. Why news recently the Supreme Court in Time City Infrastructure and Housing Limited Lucknow versus the state of UP and others ruled that an ex parte injunction granted under Order 39 Rule 3 of the CPC must be vacated if the plaintiff fails to comply with the conditions set forth in the proviso of Rule 3. Background of the case: the appellant had brought and obtained an ex parte injunction from the trial court without notice to the defendant based on the urgency of the matter. The Allahabad High Court overturned the trial court's ex parte injunction order, finding that the trial court had failed to record reasons for granting injunction as required by law. The High Court observed that the plaintiff failed to serve the required documents, which were application of injunction, affidavit, plaint, and supporting documents to the defendant, violating Order 39 Rule 3 of the CPC. It found the trial court's order invalid due to non-compliance with the mandatory conditions of Rule 3, which include recording reasons and serving documents. What were the court observations? The bench of Justice J.B. Pardiwala and R. Madhavan emphasized that recording reasons for granting an ex parte injunction is mandatory under Order 39 Rule 3 CPC, and failure to do so invalidates the order. The plaintiff must serve relevant documents to the defendant even in ex parte injunctions to ensure procedural fairness. The Supreme Court affirmed the High Court's decision, retaliating that non-compliance with Rule 3 CPC's mandatory provisions requires vacating the injunction. Provision involved is Order 39 Rule 3 of the CPC, which deals with the granting of ex parte injunctions. Under this provision, the court may grant an injunction without notice to opposite party in urgent situations, but only if the applicant satisfy the court the object of the injunction would be defeated by delay. The proviso of Rule 3 requires the plaintiff to serve the relevant documents to the defendant within a specific period, even if the injunction is granted ex parte. It's the time for practice question. What is the mandatory requirement for granting an ex parte injunction under Order 39 Rule 3 CPC? Option A, immediate hearing in the presence of both parties. Option B, recording reasons for granting the injunction. Option C, filing a reply by the defendant. And option D, granting the injunction only after the trial. Pin down your answers in the comment section below. एक्स पार्टी इंजेक्शन अमान्य हो सकता है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है। हाल ही में टाइम सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग लिमिटेड लखनऊ बनाम यूपी राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी के आदेश 39 नियम 3 के तहत दी गई एक्स पार्टी इंजेक्शन को रद्द कर दिया जाना चाहिए यदि वादी नियम 3 के प्रावधान में निर्धारित शर्तों का पालन करने में विफल रहता है। आइए अब जानते हैं इस मामले की पृष्ठभूमि के बारे में। अपीलकर्ता ने मामले की तात्कालिकता के आधार पर प्रतिवादी को नोटिस दिए बिना ट्रायल कोर्ट से एक्स पार्टी इंजेक्शन मांगी और प्राप्त की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के एक्स पार्टी इंजेक्शन आदेश को यह पाते हुए पलट दिया कि निचली अदालत इंजेक्शन देने के कारणों को दर्ज करने में विफल रही, जैसा कि कानून द्वारा अपेक्षित है। उच्च न्यायालय ने पाया कि वादी ने प्रतिवादी को जरूरी दस्तावेज, इंजेक्शन के लिए आवेदन, शपथ पत्र, वाद पत्र और अन्य सहायक दस्तावेज नहीं दिए। इससे आदेश 39 नियम 3 सीपीसी का उल्लंघन हुआ। न्यायालय ने कहा कि नियम 3 में कुछ जरूरी बातें हैं, जैसे कारण लिखना और दस्तावेज उपलब्ध कराना। इनका पालन न करने की वजह से निचली अदालत का आदेश अमान्य माना गया। आइए अब जानते हैं न्यायालय की टिप्पणियों के बारे में। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि सीपीसी के आदेश 39 नियम 3 के तहत एक्स पार्टी इंजेक्शन देने के लिए कारण दर्ज करना अनिवार्य है और ऐसा न करने पर आदेश अमान्य हो जाता है। प्रक्रियागत निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए वादी को प्रतिवादी को प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे, यहाँ तक कि एक्स पार्टी इंजेक्शन में भी। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए दोहराया कि नियम 3 सीपीसी के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन न करने पर इंजेक्शन रद्द करना आवश्यक है। आइए अब जानते हैं इस मामले में शामिल प्रावधानों के बारे में। सीपीसी का आदेश 39 नियम 3 एक्स पार्टी इंजेक्शन देने को नियंत्रित करता है। इस प्रावधान के तहत न्यायालय अत्यावश्यक परिस्थितियों में प्रतिपक्षी को बिना सूचना दिए इंजेक्शन दे सकता है, लेकिन तभी जब आवेदक न्यायालय को यह विश्वास दिला दे कि विलंब से इंजेक्शन का उद्देश्य विफल हो जाएगा। नियम 3 के प्रावधान के अनुसार वादी को संबंधित दस्तावेज, इंजेक्शन के लिए आवेदन, शपथ पत्र, वाद पत्र और सहायक दस्तावेज सहित प्रतिवादी को एक विशिष्ट अवधि के भीतर देने होंगे, भले ही इंजेक्शन एक पक्षीय दी गई हो। आइए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। आदेश 39 नियम 3 सीपीसी के तहत एक्स पार्टी इंजेक्शन देने के लिए अनिवार्य आवश्यकता क्या है?
आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए, दोनों पक्षों की उपस्थिति में तत्काल सुनवाई। ऑप्शन बी, इंजेक्शन देने के कारणों को दर्ज करना। ऑप्शन सी, प्रतिवादी द्वारा उत्तर दाखिल करना। ऑप्शन डी, केवल परीक्षण के बाद ही इंजेक्शन प्रदान करना। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद।